Good morning, dear children. Welcome back to your grammar class. Yesterday, I told you about how to write a short paragraph. I hope you have completed your homework. This question number 3 was your homework, and I have sent you this pic also. Hope you have completed it. If you have not completed yet, kindly do it. Right, children? Now, today, we will do grammar. Alright, it is on page number 106 and today's topic is verbs. What is our topic? Verbs. Okay, children, now tell me what are verbs. Can anyone tell me what are verbs? Yes, hopefully you all have remembered. In previous classes also we have learned this. Okay, no issue. Children, verbs are doing words or action words. Okay. For example, see what I have done. I wrote something. Okay, means writing. I am writing. मैंने कुछ लिखा, कुछ action किया. Now see what I am doing. I am rubbing my hands. Okay. Right now what I am doing? I am speaking. I am teaching you. Okay. So like you're laughing, you're running, you are drinking, you are bathing, you are talking, you are crying, mummy is washing the clothes. What are these words? These washing, crying, laughing, running, walking, these all are your verbs. ठीक है चिल्ड्रेन, ये सब क्या है? आपके वर्ब्स हैं. वर्ब्स होते हैं आपके डूइंग वर्ड्स या फिर एक्शन वर्ड्स भी आप उनको बोल सकते हो. ठीक है. Now in this picture you can see that this boy is going downstairs, these students are coming this side. Okay, so in this picture also you can see the verbs. Your action words are there. This boy is going downwards. These children are coming downwards. They are running on these stairs. Okay, so like this, these are your verbs. Here you can see the examples. What you do at school? I study in school, I play in school, I use the computer. Now these study, play and use, these are your action words, means these are your verbs. Now what do you do at home? I water plants, I tidy my room, I watch TV. Now this water, tidy and watch is again your verbs. Okay, डूइंग वर्ड्स. आप टीवी देखते हो ना, तो लाइक यू वॉच टीवी. टाइडी माई रूम, आप अपने रूम को क्लीन कर रहे हो. यू आर वाटरिंग द प्लांट्स, आप प्लांट्स को वाटर कर रहे हो, है ना, उनको वाटर दे रहे हो. सो these are your action words. Now children, in this question what you have to do is circle the words which are verbs in the following box. In this box so many words are written here. बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं. अब इसमें से आपको सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को सर्कल करना है जो कि वर्ब्स हैं, जो कि डूइंग वर्ड्स हैं, जिनसे आपको कुछ करने का पता चल रहा है. लाइक वॉश, वॉश धोना, जंप, जंप करना, सिट बैठना, रन करना. ओके, ह्यूज बड़ा. अब ह्यूज तो इट्स मीनिंग इज़ बड़ा, तो ये तो कोई एक्शन वर्ड नहीं हुआ ना, ये तो कोई डूइंग वर्ड नहीं हुआ. सेम वेज मैम हैज़ डन दिस. First you do it and after that from the PDF you can complete this work. Now in question number 2 again you have to fill these fill-ups with the given verbs in this box. इस box में जो verbs दी गई हैं इसमें से आपको words को find out करके ये fill-ups को complete करना है. Now children, our next topic is subject and verb. Okay, now for first time you are studying this subject. वर्ब तो आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन सब्जेक्ट आप थर्ड क्लास में पहली बार पढ़ रहे हो. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, एवरी कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. हर जो एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब भी ज़रूर होती है. ठीक है. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ द नाउन और प्रोनाउन फॉर द पर्सन, एनिमल और थिंग दैट डज द एक्शन. अब सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन फॉर पर्सन, एनिमल या फिर थिंग. ठीक है.
किसी भी एनिमल के लिए, पर्सन के लिए या फिर थिंग्स के लिए जो भी नाउन या प्रोनाउन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. द वर्ब इन अ सेंटेंस सेज व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डज. अब वर्ब क्या बताती है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या कर रहा है, उस चीज़ को वर्ब बताती है. अब आप यहाँ एग्जाम्पल से समझो. द कैट ड्रैंक द मिल्क. कौन मिल्क पी रहा है इसमें? कैट पी रही है. ठीक है, तो द कैट कौन कर रहा है वर्क? द कैट. कैट कर रही है वर्क. क्या वर्क कर रही है? ड्रैंक, दूध को पी रही है. द बर्ड ब्रॉट ग्रास. कौन लेकर आया ग्रास को? बर्ड. तो ये जो द बर्ड है ये आपका सब्जेक्ट है. शी रैंग हर डॉटर. किसने फ़ोन किया अपनी बेटी को? ये जो लेडी खड़ी है यहाँ पे, शी. ठीक है, तो ये जो शी वर्ड है यहाँ पर, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है. और रैंग क्या है आपका? ये वर्ब है. सेम वेज हियर. अमर ब्रश्ड हिज टीथ. द बॉल हिट द गर्ल. द बेबी स्लेप्ट पीसफुली. जो भी ये स्टार्ट सेंटेंस हो रहा है जिन वर्ड्स से, मैक्सिमम टाइम्स आपके जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से ही शुरू होते हैं. ठीक है. द वर्ड्स इन बोल्ड आर सब्जेक्ट्स, द अंडरलाइंड वर्ड्स आर वर्ब्स. जो आप इसमें डार्क ब्लैक कलर से देख रहे हो ये आपके क्या है? सब्जेक्ट है. और जो आपके अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये आपकी वर्ब्स हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ हियर इन ऑन पेज नंबर 109 in question number 3 you have to underline the subject in the following sentences. इन sentences में आपको subjects को underline करना है. Now in question number 4 underline the verbs in the following sentences. Question number 4 में आपको verbs को underline करना है. Here is question number 5. Match the subjects with the verbs. The first one has been done as an example. Subject को verb के साथ आपको match करना है. Ma'am already told you that no need to do line matching. You all have to do the number matching. So number first is dog. Dog subject है तो verb क्या होगी उसके लिए? barks. कि dog क्या कर रहा है? bark कर रहा है. Cat. Cat क्या कर रही है? mew. Okay. Ring. What does ring do? Ring is shines. Ring shines. ठीक है. Students learn. Stars twinkle. Horse gallops. Bird flies. ठीक है. Now these are the subjects and these are the verb. You have to match the subject with the verb. Right children? Now children, today's third topic is, सबसे पहले आपने सीखा verb. Verb क्या होती है? आपके एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड्स आर योर वर्ब, जिनसे आपको पता चलता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ काम हो रहा है, वो वर्ड्स होते हैं वर्ब. ठीक है. और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो वर्ड आप नाउन या पर्सन, प्लेसेस या फिर एनिमल्स के लिए जो नाउन्स और प्रोनाउंस यूज़ करते हो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जो आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है. हियर यू कैन सी द बॉय, स्मृति, द बेबी, ये सब क्या है? ये है आपके सब्जेक्ट. एंड प्लेज, क्लीन्स, स्लीप्स, ये क्या है आपकी? ये है आपकी वर्ब्स. ओके. नाउ चिल्ड्रेन, द सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट एग्री विद इट्स वर्ब. यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हो, सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हो, उसके साथ में जो आपकी वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर ही लगेगी. ऑलराइट, वो भी क्या लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी. अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ये तो प्लेज लिखा है, ये क्लीन्स लिखा है, ये स्लीप्स लिखा है, तो ये तो प्लूरल वर्ड है. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. आप ये देखो कि अ सिंगुलर वर्ब जनरली एंड्स इन एस. जो सिंगुलर वर्ब होती हैं वो एस से ही एंड होती हैं. यहाँ पे जो प्लेज है, क्लीन्स है, स्लीप्स है, ये आपके सिंगुलर वर्ब्स हैं. ओके. बॉय, स्मृति, बेबी, ये क्या है? आपके सिंगुलर नाउन्स हैं. सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे और सिंगुलर वर्ब्स में हमेशा एस लगता है. ठीक है. अब नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसमें वर्ब भी प्लूरल होगी. ठीक है. जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसकी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल ही होगी. ओके. नाउ यू कैन सी दिस. द बॉयज़ प्ले. अब आप कहोगे मैम फिर से प्ले, क्लीन, स्लीप, इसमें एस तो लगा नहीं, तो ये प्लूरल कैसे हो गया?
तो जो ये विदाउट एस वर्ड लिखे हैं ये ही इसमें प्लूरल वर्ब्स होती हैं। जो सिंगुलर वर्ब्स होती हैं उसमें एस लगता है और जो प्लूरल वर्ब्स होती हैं उसमें एस नहीं लगता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से सीखना है और समझना और अपने दिमाग में बिठाना है कि सिंगुलर जो आपकी ना वर्ब्स होती हैं उसमें एस ज़रूर ऐड होता है और जो आपकी प्लूरल वर्ब्स होती हैं उसमें एस ऐड नहीं होता है। ओके, नाउ सी दिस टेबल। इज सिंगुलर है, इसकी प्लूरल वर्ब क्या होगी? आर। डज सिंगुलर है, इसकी प्लूरल वर्ब क्या होगी? डू। क्लीन्स क्लीन, गोज गो, हैज़ हैव। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब्स हैं और ये इनकी प्लूरल वर्ब्स हैं। सेम वेज दिस साइड मेक्स मेक, टेक्स टेक, सेज से, कुक्स कुक, वॉज वर। ये सिंगुलर वर्ब्स हैं और ये प्लूरल वर्ब्स हैं। ठीक है चिल्ड्रेन, now this exercise you have to do in your book. Choose the correct forms of the verbs to complete the following sentences. Here you can see my father. Father is singular. Okay, singular है तो उसके साथ जो आपकी वर्ब है वो भी सिंगुलर लगेगी ना। अब आप मैम को बताओ कि ड्राइव सिंगुलर है या ड्राइव्स सिंगुलर है? ड्राइव्स सिंगुलर है। ठीक है, जैसे मैम ने आपको बताया था कि नाउ जो भी आपकी वर्ब्स होती हैं जिसमें एस लग जाता है वो आपकी सिंगुलर वर्ब होती है और जिसमें एस नहीं लगता है वो प्लूरल वर्ब होती है। तो मैम विल सेंड यू दिस PDF. ओके, यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली. ओके चिल्ड्रेन, टुमारो अगेन वी विल मीट. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.